تربیت دیا کرتی تھی. ہماری مائیں دیکھیں, ہمارے گھر کی عورتوں پر ذرا نظریں ڈالیں, آج بھی 6-7 سال کے بچوں کی چین کھولتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا یہاں کھڑے ہو کر پیشاب کر لیں, اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کراتی ہیں. جلاد اور اے سرکاری عملہ, چونکو نہیں, مجھے پھانسی کے تختے پر پہنچانے کی ذمہ دار میری ماں ہے. یہ میرے کے تقوی کا ذکر آج بھی ہوتا ہے, ان کے انتقال کے بعد بھی ہوتا ہے, ان کے مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے, کیونکہ تقوی سے بزرگی ملتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ تقوی سے کیا مل رہا ہے؟ اے لوگو, ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا, یعنی تمہارا باپ ایک, تمہاری ماں ایک. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ, اور ہم نے تمہارے شعبے اور قبیلے بھی بنا دیے. ہم نے تمہارے شعبے اور قبیلے, ذات اور برادری اور برانچیں بھی بنا دی. اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے سے بڑھ کر ہو. کوئی خان اگر یہاں بیٹھا ہو تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب سے اونچا, کوئی قریشی اگر یہاں ہو تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب سے اونچا. جرجیس انصاری برادری سے تعلق رکھتا ہے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری قوم سب سے اونچی, میں سب سے بلند. کوئی بلند نہیں, کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں بڑا وہ ہے, تم میں معزز وہ ہے, تم میں صاحب حیثیت اور صاحب عزت و فضیلت وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے, جو اللہ کا خوف سب سے زیادہ کھانے والا ہے, وہ بڑا ہے. کس کو بڑا کہا؟ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. آپ کو معلوم ہے اور نہ معلوم ہو تو سن لو, بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, مسجد کے اندر تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے عرب کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں, اونچی اونچی ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں. عثمان غنی جیسا امیر انسان بھی بیٹھا ہوا ہے جس نے غزوہ تبوک کے موقع پر 100 نہیں, 200 نہیں, 300 نہیں, 700 اونٹ صدقہ دیا تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو. 700 اونٹ. اتنے امیر آدمی اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ابو بکر بیٹھے, عمر بیٹھے, عثمان بیٹھے, بڑی بڑی ہستیاں نبی اکرم کے پاس بیٹھی, اور اللہ کے رسول کہتے ہیں این البلال, این البلال, بلال کہاں ہے, بلال کہاں ہے, بلال پیچھے بیٹھے. آواز آتی ہے لبیک وسعدیک, اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں, اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں, میں یہاں ہوں. آپ نے کہا بلال ادھر آؤ. بلال کو اپنے قریب بٹھایا. حضرت بلال, اور جانتے ہو, نہ جانتے ہو تو سنو, حضرت بلال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, ان کی شکل کے بارے میں, اتنے کالے تھے, اتنے کالے تھے, حبشہ کے تھے, اتنے کالے تھے کہ کوئلے کا رنگ, لکڑی جب جل کر کوئلہ ہو جاتی ہے, اس کوئلے کا لفظ حدیث میں آیا کہ کوئلے کا رنگ پھر بھی کچھ صاف ہوگا, بلال اس سے بھی زیادہ کالے. اب تصور کرو کہ کتنے کالے ہوں گے. لیکن اللہ کے رسول نے ان کو اپنے پاس بٹھایا, اور بٹھا کر سارے صحابہ کے سامنے کیا کہا, اے بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو, اے بلال ایسی کون سی نیکی ہے جو تم کرتے ہو کہ جب مجھے جنت دکھائی دی, میں نے جنت کا دورہ کیا, فرشتے مجھے جنت دکھا رہے تھے, تو میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز اپنے کانوں سے سنی ہے. تم جنت میں چل رہے تھے اور تمہارے جوتوں کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی. یعنی اللہ نے مجھے جنت دیکھتے وقت یہ بتا دیا کہ بلال کو میں جنت دے کر رہوں گا.
यकीन ना आए तो ऐ नबी देख लो ये बिलाल की जूतों की आवाज, यानी बिलाल को मैंने जन्नत दे दी। आए बिलाल, ऐसा कौन सा अमल करते हो कि तुम दुनिया में थे, चलते दुनिया में थे, फिरते दुनिया में थे, खाते और पीते दुनिया में थे, लेकिन तुम्हारे जूतों की आवाज मैंने जन्नत में सुनी। तो हजरत बिलाल ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था कि अल्लाह के रसूल, मुझे तो नहीं मालूम ऐसा कौन सा अमल है, जो सब करते हैं वही मैं करता हूं, जो और लोग नमाज पढ़ते हैं मैं भी पढ़ता हूं। आपने कहा बिलाल नहीं, कोई अमल तो ऐसा है जो तुम और दूसरों से हटकर करते हो। हजरत बिलाल ने कहा हाँ, एक अमल ऐसा है जो और लोगों को करते हुए मैंने नहीं देखा लेकिन मैं करता हूं। कहा क्या? कहा अल्लाह के रसूल, मैं बिला वुजू के कभी नहीं रहता हूं, मैं बेवुजू कभी नहीं रहता हूं। जैसे ही मेरा वुजू टूटता है मैं फौरन वुजू बना लेता हूं, जैसे ही मेरा वुजू खत्म होता है मैं दोबारा वुजू बना लेता हूं, और जब भी वुजू बनाता हूं उसके बाद कुछ नफिल जरूर पढ़ता हूं। अल्लाह जितनी तौफीक दे, कभी 2, कभी 4, कभी 6, कभी 8, जितनी अल्लाह तौफीक देता है। मैंने वुजू बनाया तो नफिल जरूर पढ़ी है, 2, 4, 6 जितनी अल्लाह तौफीक देता है उतनी मैं पढ़ लेता हूं। फरमाया बस ऐ बिलाल, यही वो नेक अमल है जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें जन्नत दी है और मैंने जन्नत में तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी है। ये किसकी तारीफ कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल बिलाल की। और बिलाल के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, शक्ल कैसी? कोयले से ज्यादा काली। जैसी अल्लाह के नबी ने बिलाल के बारे में ये तारीफ की तो वहां जितने भी अमीर और दौलतमंद बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, एक एक करके बिलाल के पास आने लगा। एक शख्स ने कहा अरे बिलाल, तुम्हारी शादी नहीं हुई है? हजरत बिलाल ने कहा हाँ, मेरा निकाह नहीं हुआ है, मैं करना चाहता हूं, लेकिन जिस घर में पैगाम देता हूं लड़की मेरी शक्ल देखने के बाद रिश्ते को रिजेक्ट कर देती है। हजरत बिलाल से वो अमीर साहबी कहता है आए बिलाल, मेरे घर में चलो, एक नजर मेरी बेटी को देख लो। शादी से पहले एक नजर लड़की लड़के को, लड़का लड़की को देख सकता है, चेहरा और हाथ की हथेली, इतनी इजाजत है, एक नजर बस। इतनी इजाजत नहीं है कि जलसों में आओ तो फोन करके आओ कि हम फला खेत में फला दरख्त के पास और फला दुकान पे हम मिलेंगे जलेबी की दुकान पर। इतनी इजाजत नहीं है शरीयत के अंदर, माफ कीजिएगा। रात रात भर व्हाट्सएप पे गुफ्तगू करो, इतनी इजाजत नहीं है शरीयत के अंदर, माफ कीजिएगा। जलसे होते हैं दीन के काम के लिए ताकि मुआशरे में कुछ सुधार हो, लेकिन 25 साल मेरी जिंदगी जो बिहार झारखंड में है, हमें गिनती याद नहीं है। समझ लो कितने कांड हमने देखे होंगे कि जर्जीस को गिनती याद नहीं है। कितने लड़के और लड़कियां जलसों में भी पकड़े गए खेतों में, और फिर पकड़ के लाए गए, दोनों को अलग अलग बिठाया गया। जलसा खत्म होने के बाद सुबह 10 बजे पंचायत हुई, लड़की के माँ बाप को भी बुलाया गया, लड़के के माँ बाप को भी बुलाया गया। मैं आपको बता नहीं सकता इस 25 साल जिंदगी में हमने कितने हादसे देखे हैं और कितने ऐसे लड़के और लड़कियों को पकड़े हुए देखा है, जलसों में पकड़े गए हैं, जलसों के अंदर। अब आप अंदाजा लगाइए, जब हमारे दीनी जलसों का हाल ये हो तो फिर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का हाल क्या होगा, जहां लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर एक साथ बैठ के पढ़ते होंगे, वहां का हाल क्या होगा। और कॉलेज की कैंटीन में चाय पीते होंगे एक साथ बैठकर, तो वहां का हाल क्या होगा। मेरे भाइयों, सिर्फ सोचो, हम उस तरफ बता नहीं सकते और ना बताना चाहते हैं। ऐसे ही नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर, सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ऐसे ही नहीं,
3 लाख मुसलमान लड़कियों ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी है कि हम फला गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी करना चाहते हैं, अगर मेरा बाप या भाई इंटरफियर करे तो उसको कोई अधिकार, अथॉरिटी और पावर नहीं होगा। मैं 18 साल की होते ही मैं उस गैर मुस्लिम लड़के से शादी करूंगी, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं, मेरे बाप को और मेरे भाई को इंटरफियर करने का कोई हक नहीं होगा। ये 3 लाख सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर इन लड़कियों ने एप्लीकेशन दी है। मेरे भाइयों, ऐसे ही नहीं दे दी है, कुछ तो वजह होगी। कहीं तो हमारी ढील होगी, कहीं तो माँ बाप की ढील होगी, कहीं तो माँ और बाप दोनों की तरबियत में कमी रही होगी। तब तो ये लड़कियों के हौसले इतने बुलंद हुए हैं। मदर्स लैप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन। माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा होता है। याद रखिएगा, जो बच्चा माँ की गोद से तरबियत हासिल नहीं कर सका, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद भी नाली के पास खड़ा होगा, पैंट की चैन खोलेगा और कुत्ते और गधे की तरह पेशाब करता हुआ नजर आएगा। ये यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, बीए और एमए किया हुआ, बीकॉम और सीए किया हुआ आदमी होगा। यूनिवर्सिटियों से तहजीब नहीं मिलती, कॉलेज से तरबियत नहीं मिली, तरबियत मिलती है माँ की गोद से। आप बड़े बड़े पढ़े लिखों को देख लीजिएगा और देख लीजिएगा क्या देखे होंगे, आप रोजाना देखते होंगे। मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत है, एक सहाबिया के घर में एक बच्चा पैदा होता है। जब वो बच्चा पेशाब करता था, वो सहाबिया उसकी शर्मगाह पर पानी डाल दिया करती थी। पानी लिया और उसकी शर्मगाह पे डाल दिया। जिस दिन वो बच्चा अपने पैरों पे चलने के लायक हुआ, जिस दिन पहला दिन अपने पैरों पर चलने के लायक हुआ, उस बच्चे को पेशाब लगा। वो बच्चा पानी का छोटा सा प्याला उठाता है और नाली के किनारे जाता है। उस बच्चे को क्या मालूम शर्मगाह क्या होती है, उस बच्चे को क्या मालूम कि कपड़ा उतारने का क्या नुकसान है। छोटा बच्चा है, पहला दिन है अपने पैरों पर चलते हुए, लेकिन वो जाता है और नाली के किनारे बैठ जाता है, अपना कपड़ा खोलता है और पेशाब करता है। उसको नहीं मालूम कि इस्तिंजा कैसे किया जाता है, उसको नहीं मालूम शर्मगाह किस हाथ से पकड़ी जाए, उसको नहीं मालूम पानी किस हाथ से डाला जाए। उसने दोनों हाथ से प्याला उठाया और पानी ऐसे ही अपनी शर्मगाह पे डाल लिया, क्योंकि माँ को ऐसा करते हुए देखता था। उसने ऐसे ही शर्मगाह पर पानी डाला। माँ अपने बच्ची का इस मंजर को देख रही है, आंखों में आंसू आते हैं और ज़ारों की तार रोती है और फिर नजरें आसमान पे डाल के कहती है, फुज़तु बिरब्बिल काबा, काबे की रब की कसम में कामयाब हो गई। मैं अपने बच्चे को जो सिखाना चाहती थी वो मैं सिखा दी। मेरा बच्चा अब बड़ा होगा तो नालियों में खड़े होकर पेशाब नहीं करेगा। मैंने अपने बच्चे को जो तरबियत देना थी वो मैंने दे दी। ये माएँ थी, अपने बच्चों को वैसे तरबियत दिया करती थी। हमारी माएँ देखें, हमारे घर की औरतों पर जरा नजरें डालें, आज भी 6-7 साल के बच्चों की चैन खोलती हैं और कहती हैं बेटा यहाँ खड़े होकर पेशाब कर लें। अपनी आंखों के सामने खड़े होकर पेशाब कराती है। इन माओं से क्या उम्मीदें लगाई जाए, इन माओं से क्या तवक्कुआत रखी जाए कि अपने बच्चों को क्या बनाएंगी। मेरे भाइयों, जब सुल्तान डाकू को फांसी की सजा हुई, इसी भारत के अंदर जब सुल्तान डाकू को फांसी की सजा हुई और जब उसको तख्ते दार पे लटकाया जाने लगा तो उससे पूछा गया, आए सुल्तान बता तेरी आखिरी तमन्ना क्या है। उसने कहा मेरी आखिरी तमन्ना है कि मुझे मेरी माँ से मिलवाया जाए। माँ को बुलाया गया और सुल्तान डाकू के सामने उसकी माँ को खड़ा कर दिया गया। कहा सुल्तान ये तेरी माँ आ गई है, बात करना चाहते हो? कहा नहीं। कहा फिर? कहा एक तमन्ना और है, अगर पूरी हो जाए तो करो। बताओ क्या तमन्ना है? माँ को बुलाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया, अब क्या तमन्ना है? सुल्तान डाकू कहता है अब मेरी तमन्ना यह है कि मुझे फांसी देने से पहले मेरी माँ को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। जल्लाद का हाथ हिल गया, कहने लगा ये क्या कह रहे हो? वहां जो अमला था सरकारी सब चौंक गया, तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा आए
जल्लाद और ऐ सरकारी अमला, चौंको नहीं, मुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचाने की जिम्मेदार मेरी माँ है। ये मेरी माँ है। जब मैं 6 साल का 7 साल का था, इसने मुझे एक सिक्का दिया और कहा बेटा दुकान से एक अंडा खरीद लाओ। मैं अंडा लेने के लिए गया, दुकानदार ने अंडा दिया, कहने लगा पैसा लाओ। मैंने कहा अभी तो दिया था, हालांकि मैंने दिया नहीं। लोग कहने लगे बच्चा है, झूठ थोड़ी बोलेगा। दुकानदार को भी यकीन आ गया इसने दिया होगा, लिहाजा मैं अंडा लेकर चला आया, पैसा भी बचा लाया। और जब मैंने अंडा अपनी माँ को दिया और पैसा भी अपनी माँ के हाथ में रखा, तो माँ ने पूछा बेटा ये सिक्का तो मैंने अंडे के लिए दिया था। उसने कहा माँ मैंने दुकानदार से झूठ बोल दिया और कहा पैसा तो मैंने दे दिया। सबने यकीन कर लिया, मैं ले आया। मेरी माँ ने उसी वक्त मुझे अपने सीने से लगाया, मेरे सर का बोसा लिया, कहा बेटा तुमने इस गरीबी में मेरा खूब साथ दिया है, अब इस सिक्के से शाम का गुजर बसर चल जाएगा। इस वाक़े ने और इस हिम्मत ने, माँ के इस सीने से लगाए जाने ने मेरे हौसले को बुलंद कर दिया। फिर मैं धीरे धीरे चोरी करने लगा, पहले छोटी मोटी चोरी करने लगा, फिर मैं बड़ा हुआ तो डकैती डालने लगा, लोगों का माल सरेआम लूटने लगा, जो माल नहीं देता था मैं उसका मर्डर करने लगा। यहां तक कि एक दिन पकड़ा गया और कत्ल साबित हो जाने पर मुझे गवर्नमेंट से, मुझे अदालत से फांसी की सजा मिली है। आए जल्लाद और आए सरकारी लोगों, मुझे इस फांसी के फंदे पर ले जाने वाली जिम्मेदार मेरी माँ है। जिस दिन 6 साल की उम्र में मैं एक सिक्का बचा के लाया था, उसी वक्त अगर इसने मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारा होता और मुझे ले जाकर उस दुकान पे गई होती और कहा होता भाई साहब ये सिक्का तुम्हारा है, अंडे का पैसा मेरे बच्चे ने नहीं दिया है, मैं अब लेके आई हूं, ये पैसा ले लो और मुझे माफ कर दो। अगर उसी वक्त थप्पड़ मारा होता तो मैं इतना बड़ा चोर और इतना बड़ा डाकू नहीं बनता। मां को फांसी के फंदे पे लटकाओ, लेकिन ये उसकी तमन्ना पूरी नहीं की गई और सुल्तान डाकू को तख्तेदार पे लटका दिया गया। मैं कहना ये चाहता हूं मेरे भाइयों, अपने बच्चों को नेक बनाओगी तो वो होगी माँ, बुरा बनाने वाली भी होगी माँ। आज गौर करो, माँ और बाप भी गौर करे अपनी औलाद पर। तुम्हारा बेटा 12 बजे रोजाना, रात में 1 बजे रोजाना घर आ रहा है, कौन जिम्मेदार है? तुम्हारी बेटी अपने घर में रात के 12 बजे और 1 बजे तक ड्रामा देख रही है, मोबाइल में और व्हाट्सएप चला रही है, फेसबुक चला रही है, इसकी जिम्मेदार कौन है? तरबियत कहां चली गई? ये हर माँ और हर बाप गौर करे। बेटों पर नजर बाप रखे, बेटियों पर नजर मां रखे। मेरे भाइयों, तरबियत का असर पड़ता है। बात दूसरी तरफ चली गई तो इज्जत जो मिलती है वो तकवे की बुनियाद पर मिलती है। कहा है बिलाल मेरे घर चलो, आए बिलाल मेरे घर चलो, आओ एक नजर मेरी बेटी को देख लो, अगर पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं। वो बात तो उधर घूम गई, लेकिन मैं फिर अपनी बात पर आ गया, यहां से कट गई थी वो बात। तो मेरे भाइयों, दूसरा कहता बिलाल मेरे भाई ने पहले कह दिया जाओ और उसकी बेटी देख लो, पसंद आ जाए तो ठीक, अगर नहीं पसंद आती है तो फिर मेरे घर चलना, मैं अपनी बेटी तुम्हें दिखा देता हूं। आए बिलाल, तुम्हारे निकाह में अगर मेरी बेटी चली गई तो इंशाअल्लाह वो भी नेक काम करके जन्नत की मुस्तहिक हो जाएगी, और दीनदार लड़के से अपनी बेटी का निकाह की वजह से अल्लाह मुझे भी जन्नत दे देगा। दीनदारी मायार आजकल तो माँ बाप की चल ही कहां रही है। पता चल गया मेरी बेटी कहां पसंद कर रही है। अब बेटी की माँ कहती है बेटी के बाप से यानी अपने शौहर से, देखो लड़की जहां चाह रही है वहीं कर दो, अगर इज्जत चाहते हो तो, भलाई चाहते हो तो। अगर अपनी बेटी की बात नहीं मानी तो सोना चांदी लेके, रुपया पैसा लेके अगर फरार हो गई तो तुम्हारी भी नाक कटेगी और पूरे खानदान की नाक कटेगी। ईमानदारी के साथ बताओ आजकल ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपने दिल पर हाथ रख कर बताओ ऐसा है कि नहीं है? आज बाप
चाहता नहीं कि इस जगह शादी करे, लेकिन मजबूर है कि अगर नहीं की तो मेरी बेटी फरार हो जाएगी और भाग जाएगी। अपनी और अपने खानदान की इज्जत को बचाने के लिए अपनी बेटी की नाजायज बात भी मानता है, जानता है कि ये लड़का ठीक नहीं है। मेरी बेटी ने जो चॉइस किया है, जो गलत किया है, वो सही नहीं है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वाकया सुनाया था ना कि मऊनाथ भंजन की सरजमीन पर एक आलिमा और फाजिला लड़की, गैर मुस्लिम लड़के के साथ, एक आलिमा कुरान पढ़ी हुई, हदीस पढ़ी हुई, तफसीर पढ़ी हुई, आलिमियत की डिग्री ली हुई, कॉन्वेंट में पढ़ाने लगी और वहां एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ उसका मुआशका हो गया, चली गई और उसने मंदिर में जाकर हिंदू रस्म रवाज के मुताबिक शादी भी कर ली। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ दिन रहने के बाद 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें बताते हैं मऊ के लोग, लेकिन वो शर्मिंदा हुई और फिर वो अपने घर पर दोबारा आ गई। उसने तौबा कर ली, अल्लाह उस लड़की को नेक बनाए, स्वालिहा बनाए, जो बहकी थी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी खताओं को माफ फरमा दे। मेरे भाइयों, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि इन गैर मुस्लिम फिरकों ने, इन गैर मुस्लिम तंजीमों ने इतनी जड़ें मजबूत कर ली हैं हमारी लड़कियों के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए कि अब ये आलिमा और फाजिला लड़कियों इसकी आज वहां तक पहुंचने लगी है। अगर हमने अपनी बेटियों पर कंट्रोल न किया तो मेरे भाइयों, वक्त दूर नहीं कि हमारी आंखों के सामने लड़कियां सिंदूर लगाएंगी और हमारी आंखों के सामने 7 फेरे लेंगी और हमारे आंखों के सामने दूसरों के साथ चली जाएंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट उनका साथ देगी, हमारा और आपका नहीं। तो तकवे से बुजुर्गी मिलती है। बिलाल को बुजुर्गी किस लिए मिली? तकवे से। मैं वुजू बनाता हूं तो जरूर नफिल नमाज जरूर पढ़ता हूं, बगैर वुजू के नहीं रहता हूं। देखिए, तकवा था।